We are Nagpur studying, नहीं होगी। yeah. Maharashtra. She is from Maharashtra. Okay. We are studying Canto 1, Chapter 3. Krishna is the source of all incarnation. Text 16. Akshay sir, please mute yourself so that it won't be any disturbance. Okay. So let us begin. Shura Shurnam Udadhim Matantam Mandarachalam Tadrikamatarupeena Prishta Ekadashe Vibhuhu Surashuranam Udadhim Matanatam Mandarachalam Dadre Kamatarupeena Prishta Ekadashe Vibhuhu Surasuranam Udadhim Matanantam Mandarachalam Tadre Kamatarupeena Prishta Ekadashe Vibhuhu. Asta read the shloka. Asta shloka padu. उदाधीं मथनातं मन्दराचलं दान्धे कामधरूपेण पृष्ठैकादशे विभु। Next, Navita, read the shloka. Navita, read. माता जी वो कॉल कर रहे होंगे तो शायद उनको आवाज नहीं जा रही अच्छा होगी। अक्षय हमारे पास श्लोक पढ़ो. शुराशूरनम् उदादिं मन्थनं मन्दराचलं दद्धरे कामथं रूपेण पृष्ठा एकादशे विभु. Akshay, will you please read the shloka? Yes, ma'am. सुरासुराणामुदन्ति मन्थनं मन्दराचल तद्रिकमठरूपेण पुष्ट एकादशे विभु. Okay. Word to word meaning. Shura, the theist, Asuranam of the atheist, Udhadhi in the ocean, Mathanatam churning, Mandarachalam the Mandarachala hill, Dadhre sustained, Kamatha tortoise, Rupena in the form of Prishthe shell, Ekadashe the 11th in the line, Vibhu the great. Now the 11th incarnation is, we'll be studying about the 11th incarnation. The 11th incarnation of the Lord took the form of a tortoise whose shell served as a pivot for the Mandrachal hill, which was being used as a churning rod by the theist and atheist of the universe. In the previous shloka, we studied about the various incarnations of Lord. First one, the Purushas, that is Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, and Shivadakshay Vishnu. Then the Guna Avataras, Brahma, Vishnu, Mahesh. And then later on, Nar Narayan Rishi, then Narada Muni, Kapila Dev. These are the empowered incarnation. Then Varahadev, Varahadev के बाद में नारद का आता है. Then Nar Narayan, and then we studied about Prithu Maharaj is also an incarnation of Lord, and who is in the dynasty of Dhruva Maharaj. So like that, these are the some of the empowered incarnation of Lord. Now the 11th incarnation that is talked about is tortoise. This is an लीला incarnation you can say कि जब मंदराचल पर्वत पे जब देवताओं और असुरों के बीच में क्या हुआ था, उन्होंने they wanted to have the nectar. So what happened, the both the parties asuras and demon, sorry, asuras and suras, demon and demigod came together. बोला कि चलो हम लोग मंथन करते हैं समुद्र का और वहां से नेक्टर निकलेगा तो आपस में बांट लेंगे. और दोनों के मन में क्या था, डेमिगॉड्स का देखा नेक्टर निकल जाए बस, इसके बाद इनको कौन पूछेगा, हम लेके चले जाएंगे. और डीमन के मन में क्या था, एक बार हमें निकल जाए तो इनका क्या करेंगे, मगर अभी तो साथ में आना पड़ेगा चाहिए तो. सो दे स्टार्टेड अप डूइंग द मंथन ऑफ द ओशन. ओशन इज लाइक चर्निंग. चर्निंग यू नो, आप लोग पता है ये मंथते हैं, जैसे बटर निकालते हैं हम लोग, तो वी डू जस्ट चर्निंग इन अ पोट, है ना. तो उसके लिए रस्सी है, वो बीच में एक डंडा रहता है, तो उसके साथ चर्निंग होता है. तो डंडे को एक बेस रहता है ना. समुद्र का एक्चुअली इट्स अ वेरी नीचे तक रहता है, तो मंदरा पर्वत को लाया गया. पहले तो इतना बड़ा समुद्र है, तो चर्निंग के लिए एक बड़ी सी रॉड चाहिए. सो व्हाट विल बी दैट रॉड, दैट रॉड इज मंदरा पर्वत. ठीक है. हरे कृष्ण माता जी, पूजा का फोन खराब हो गया है, सो शाम तक ठीक होगा. ओके, नो प्रॉब्लम. सो व्हाट शी डोंट हैव द लैपटॉप, मे बी शी कैन जॉइन विद द लैपटॉप, इट्स ओके. सो क्या होता है, तो वहां पे अब ये समुद्र में मंथन करना था, तो एक बड़ा सा रॉड चाहिए. से दे ऑल सेड कि देयर इज अ मंदरा पर्वत, मंदराचल हिल, सो वी शुड ब्रॉट दैट
एंड उसको रखेंगे बीच में। और रस्सी किसको बनाया? वासुकी को। वासुकी इज अ स्नेक, ठीक है, वासुकी को रस्सी बनाया। अब इतनी बड़ी रस्सी थोड़ी ना मिली, तो दे ब्रॉट द वासुकी स्नेक एज अ रोप जिससे चर्निंग करना है। सो ये जो मंडरा हिल था, इवन द ऑल द डेमिगॉड्स एंड दे ऑल वेंट टू गेट द हिल, बट क्या हुआ था, सारे उस हिल के नीचे आके क्रश हो गए थे। डेमिगॉड्स एंड द डीमंस, उनके बेचारों के हाथ पैर टूट चुके थे। सो लॉर्ड हिमसेल्फ केम ऑन गरुड़ा, जिसमें उन्होंने देवताओं असुरों सबको बिठाया और मंदराचल को भी बिठाया, हिल को, एंड ही ब्रॉट डाउन ऑन द ओशन। और वासुकी द स्नेक वाज ब्रॉट, ठीक है, मगर उसको कब लाया गया? जब गरुड़ जी चले गए वहां से। तो स्नेक्स आर वेरी फियरफुल ऑफ गरुड़ा। सो व्हाट हैड हैपेंड, देन वासुकी केम एंड वहां पे अब हो गया कि दुम कौन पकड़ेगा तो सिर कौन पकड़ेगा, लाइक दैट द पास्ट टाइम वाज। इट्स अ वेरी डिटेल्ड पास्ट टाइम, यू विल स्टडी इन which canto we studied, ninth canto we studied. In the ninth canto it is there, so maybe the ninth, yeah, ninth canto the pastime is there, तो वहां पे इसका डिटेल मिलेगा आपको। तो क्या होता है, ये जितने भी इनकारनेशन है ना, इन सबका पास्ट टाइम का आपको नाइन्थ कैंटो में डिटेल, एट्थ की एंडिंग नाइन्थ में मिलेगा आपको, ठीक है। सो क्या होता है, अब ये हिल तो है मगर हिल का बेस नहीं है नीचे। तो कभी जो वो पर्वत मंदराचल था, टर्निंग रॉड, इट वाज फॉलिंग डाउन हियर एंड देयर, सो द पर्पस वाज नॉट सॉल्विंग। अब रॉड है, रस्सी है, डिवाइड हो गया असुरगण और देवगण, तो नाउ हाउ टू, वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो उसके लिए देन लॉर्ड टुक द फॉर्म ऑफ टोटोटॉय। देखो भगवान कितने हैं, उन्होंने कछुए का फॉर्म लिया। अब कछुए का हार्ड शेल होता है ना ऊपर से, तो मंदरा पर्वत के नीचे टोटोटॉइस और उसके ऊपर मंदराचल रखा गया, एंड देन द चर्निंग वाज स्टार्टेड। सो दिस टोटोटॉइस इज द फॉर्म ऑफ लॉर्ड का ही इनकारनेशन है, ठीक है। So in the purport it is stated, once both the atheist and the theist were engaged in producing nectar from the sea, so that all of them could become deathless by drinking it. At that time, the Mandarachal hills were used as churning rod, and the shell of Lord Tortoise, the incarnation of God, had become the resting place, pivot of the hill in the sea water. तो इसका वास्तव का ज़्यादा डिटेल आपको आगे के कैंटोस में मिलेगा। For the time में इतना ही है, but already I think I told the story a little bit. We'll move to the next. धन्वन्तरं तु दस्सामं त्रायदासमम् एव च अपयायत् सूरन्नन्यन् मोहिन्यां श्रिया। अब यहाँ पे धन्वंतर निकलते हैं, धन्वंतरी हमारे मेडिसिन के जो मेडिसिन के कौन है, गॉड ऑफ मेडिसिन इनको कहा जाता है, लाइक धन्वंतर। सो इसे द 12th इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड अपीयर्ड एज धन्वंतरी। ये ओशन से निकले थे जब चर्निंग हो रहा था, तो धन्वंतरी के, ठीक है, कैरिंग द पॉट ऑफ नेक्टर इन हिज हैंड। And the 13th is allured by the atheist by charming beauty of a woman, give nectar to the demigod to drink, that is Mohini Rupa. तो इसी के बाद जब ये नेक्टर निकलता है ओशन से, तो अब असुरों को तो दे नहीं सकते हैं, तो दोनों में लड़ाई हो रहा था। तो कृष्णा took the form of a woman, female, that is a very beautiful incarnation of Lord, that is Mohini Murti. And this Mohini Murti of Krishna, this is the 13th incarnation. And फिर वो कैसे, the whole pastime is later on, we'll be studying. अभी के लिए इतना ही है, तो we'll be talking this much only. The 13th incarnation was the women form of Krishna, that is Mohini Murti. ठीक है, we'll move further. चतुर्दाशं नरासिंहं विवर्ध दैत्यन्द्रम् ऊर्जितं दादरकर्जे उरवा इराकं कातकृद्यतः। अब कौन से रूप में आए हैं? नरसिम्हा के रूप में। The 14th incarnation of the Lord appeared as Narsimhadev and bifurcated the strong body of the atheist Hiranyakashipu with his nail, just as the carpenter pierces the cane. जैसे जब रावण के साथ में युद्ध हो रहा था, राम एंड लक्ष्मण वाज देयर, सो रावण वेंट टू बलि महाराज, उनके प्लैनेट में जाते सुतला में, तो ही वेंट टू बलि महाराज टू आस्क फॉर हिज फेवर, कि वो जाते हैं उनके पास, बलि महाराज के पास, कि आप मुझे देखो, दो लड़के आए हैं, ये राम और लक्ष्मण, तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा, तो भाई मेरी पूरी लंका का उजाड़ दिया है, तो आप हेल्प करो मुझे। हम भाई, असुर भाई भाई होते हैं, सो इन द नीड ऑफ, नाउ आई एम इन नीड, सो हेल्प मी। सो व्हाट हैपेंस, सो बलि महाराज से, अच्छा राम एंड लक्ष्मण है इसके, ओके ओके ओके, चलो आओ जरा। Sorry, got disconnected. So what happens, Krishna? So Bali Maharaj said to Ravana, okay, you come with me, I will, मैं आपको थोड़ा बगीचा दिखाऊं पीछे थोड़ा। तो जाते हैं, तो वहां पे एक पर्वत होता है पूरा सोने का पर्वत होता है। तो बलि महाराज कहते हैं, मैंने सुना आपने हिमालय हाथ में उठा लिया था,
तो ये जो पर्वत है ना सोने का, जरा इसको भी हिला के दिखाओ जरा। तो रावण कहता हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मैं शक्तिशाली उठा सकता हूँ। उन्हें हाथ डाला पर्वत के नीचे, तो अब वो जो पर्वत था वो तो हिला नहीं बिल्कुल भी, तो वो तस से मस ना हुआ। तो बलि महाराज ने कहा तुमको पता है ये किसका है कुंडल, ये जो पर्वत है ये क्या है? कहते ये हिरण्यकशिपु का एक कुंडल है। कुंडल मतलब ये जो कान में पहनते हैं ना, बाली हम लोग डालते हैं। कहते ये हिरण्यकशिपु का एक कुंडल है, जिसको नरसिम्हा देव ने क्या किया, अपने नाखून से ही उसका सर्जरी हो गया और वो was died, and this is a kundal of Hiranyakashipu and you are not able to pick it. So do you think that Ram and Lakshman are the same Krishna or the same Narasimha Dev? So would you able to defeat them? भाई अपने घर जाओ, ये कुंडल नहीं उठा पा रहे हो तो you are thinking of defeating Ram and Lakshman, those who are the same incarnation of Lord Narasimha. So the point I wanted to make it that Narasimha Dev appears, जितना ही बड़ा demon क्यों ना हो, for them they are like the वास्प। ये वास्प मतलब छोटा सा कीड़ा है जिसको आप नाखून में मसल सकते हो। सो दैट वाज देयर, ठीक है। So the Lord appeared in Narasimha and before get the strong body of atheist Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was a very big demon, very big, ठीक है। उसको उसका बॉडी ऐसे ही जस्ट लाइक जैसे एक कीड़े को मसलते हैं ना नाखून में, वैसे करके लॉर्ड डिड दैट थिंग। एंड लॉर्ड नरसिम्हा देव, दैट इज एन स्पेशल बून कि इसका आप 7th कैंटो में इसका डिटेल पढ़ोगे प्रहलाद महाराज की टीचिंग्स में, 7th कैंटो में। या सो हिरण्यकशिपु ही performed great austerity and charity, sorry, prosperity, and pleased Lord Brahma, and he begged for the boon. And क्या बून मांगा कि मैं इमोर्टल रहूं, मैं मरूं ना, कभी अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं भी भौतिक जगत में आता हूं, तो जन्म मृत्यु तो मेरा भी होता है। ये है कि टाइम पीरियड बहुत लंबा है मेरा, मगर मृत्यु तो मेरे को भी आती है, तो ये तो मैं आपको नहीं दे सकता। सो देन हिरण्यकशिपु ट्रिक्ड ब्रह्मा जी, ट्रिक्ड इन द सेंस उसके हिसाब से ट्रिक था, मगर इट्स वाज नॉनसेंस, बेवकूफी वाली बात है। तो कहते ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, है ना हथियार से मरूं ना तो किसी और चीज से मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, ना दिन में मरूं ना रात को मरूं, ना बाहर ना अंदर मरूं। तो इस तरह से काफी ज्यादा, ना आताल में पाताल में मरूं। तो इस तरह से काफी उसने कंडीशंस रखी। तो उसको लगा ये कंडीशंस की वजह से मैं तो अब मर ही नहीं सकता, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो देयर इज नो वे दैट नो वन कैन किल मी। ना तो जानवर से मर सकता हूँ, ना तो इंसान से, तो ना वेपन से, ना किसी हथियार किसी चीज से। सो इट मीन्स आई एम अमर। तो बट हर चीज का एक लूप होल होता है, यू नो। सो देन लॉर्ड नरसिम्हा देव के इज हाफ लॉ एंड हाफ मैन, ना तो जानवर ना तो इंसान, क्या कहेगा उसको, कॉम्बिनेशन, यू नो। और मारा भी कहा, ना बाहर तो ना अंदर, दरवाजे के बीचों बीच, ना दिन में ना रात को, शाम को मारा, है ना। हथियार से भी नहीं मारा, नाखूनों से ही मार डाला। सो दिस इज नरसिम्हा देव एज अ स्पेशल इनकारनेशन टू किल हिरण्यकशिपु, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट। पंचदाशं वामनाकं कृत्वगद अध्वरं बले पदात्रायं यचामनः प्रत्यादिस्तुस्त्रिपृष्ठपम्। In the 15th incarnation, the Lord assumed the form of a dwarf Brahmana, Vamana, ठीक है। अब वामन रूप में आते हैं भगवान, ठीक है। ये किस लिए था कि बलि महाराज ने क्या किया था, जो इंद्रलोक में, मैं पूरा डिटेल तो नहीं मगर पूरे पास टाइम का थोड़ा थोड़ा डिटेल मैं आपको बता देती हूँ व्हाट हैड हैपन। इसका भी आप ये 7th नहीं 9th कैंटो कि 8th में इन द 8th और 9th कैंटो द डिस्क्रिप्शन इज देयर। सो उसमें क्या है, वामन देव आते हैं, कश्यप मुनि और दीति के ही पुत्र रूप में आते हैं। तो व्हाट हैड हैपन, ये जो अदिति थी देवताओं की माता थी, ठीक है। तो सॉरी, वामन देव किन के पुत्र थे, देवताओं वाले भी थे, कश्यप और अदिति, अदिति एंड कश्यप के वामन देव थे। सो क्या होता है, अदिति के जब कुंडल और अम्ब्रेला चुरा लिया गया था, ये राक्षसों ने ही चुराया था, तो वापस लाया था। एक्चुअली क्या होता है उस टाइम, बलि महाराज क्या है, प्रहलाद महाराज के ही वंशज हैं, मतलब उनके दादा माने जाते हैं प्रहलाद महाराज। तो बलि महाराज हमारे महाजनों में से भी एक हैं, मगर वो डीमन थे। तो हुआ क्या, बलि महाराज ने क्या किया, जो इंद्र लोक था इस पे कब्जा कर लिया था। उस टाइम पे द डीमंस वर मोर पावरफुल, और जो देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने कहा कि इस समय जो टाइम पीरियड है तुम लोगों का टाइम सही नहीं चल रहा है, तो तुम शायद जितनी भी शक्तियां भी अर्जित कर लोगे तो इनको हरा नहीं पाओगे। तो अभी के लिए आप क्या हो जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड मतलब लुप्त हो जाओ, जस्ट बी इन समवेयर, कि जब तक आप वो स्ट्रेंथ एकत्रित ना कर पाओ तब तक
गायब हो जाओ। सो द हेवन पे अब किसका कब्जा था? बलि महाराज का। सो अदिति वाज अ मदर, शी वाज अ मदर, तो शी वाज वेरी ट्रबलसम कि अब ये क्या, मेरे बच्चे बेघर होके घूम रहे हैं इधर उधर, घर बार नहीं है। शी वाज वेरी ट्रबल्ड, तो शी टोल्ड कश्यप मुनि, बताया उनको। सो देन लॉर्ड वामना देव केम। एक्चुअली अब बलि महाराज को फेवर था ब्राह्मणों का, ही वाज डूइंग द सम यज्ञ दैट टाइम। सो और जो ब्राह्मण है, they are very dear to Krishna. He says, Namo Brahmana Hitaya Cha Go Brahmana. What was the prayer? Namo Brahmana Go Hitaya Cha. Yeah. So like Brahman and Guy, they are like very dear to Krishna. So Krishna की वर्शिप तो की उन्होंने मांगी, हेल्प मांगी। कहते कि देखो बात ये कि जो बलि महाराज है उनको ब्राह्मणों का बड़ा सपोर्ट है, तो मैं अब वो ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है तो मैं उसको ऐसे तो कुछ कर नहीं सकता। सो द ओनली लूप होल इज लाइक इफ आई विल बी योर सन, तो अब मैं पुत्र बन के आऊं तो शायद ब्राह्मण बन के आऊं, कुछ चैरिटी मांगू तो शायद तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। सो देन ही appeared as Vamanadev from Kashyapa and Aditi, and then as a Vamana means dwarf, छोटे से बच्चे के रूप में, ब्राह्मण ब्रह्मचारी। एंड ही वेंट टू बलि महाराज, उनके कोर्टयार्ड जाते हैं जहाँ पे यज्ञ हो रहे होते हैं। एंड बलि महाराज को आपको स्टोरी पता होगा, उनसे मांगते हैं कि मुझे भिक्षा दो। एंड बलि महाराज says ask whatever you wanted, and he says I just need 3 steps of land, मुझे 3 कदम की जमीन चाहिए। So this Bali Maharaj says, you seems to be very intelligent boy, such a great brahmachari, इतना पालन कर रहे हो, but you are asking such a, मगर जो तुम मांग रहे हो ये तो बेवकूफों की तरह मांग रहे हो, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ, तुम बस 3 कदम मांग रहे हो मुझसे। So what so? Shukracharya, who was the guru of Bali Maharaj, he was well aware कि he is a Vishnu, Vamanadev, and he will take away everything. अब कहते हैं कि जो गुरु होता है, यदि उसमें ऐसा हो कि मेरे शिष्य से मुझे कुछ लेना है, he was having expectation to take some material benefit, he is not actually real guru. तो one should क्या करना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो शुक्राचार्य हैज दैट मोटिव कि विष्णु की सेवा कैसे करेगा ये, तो विष्णु की तो सेवा करनी है, विष्णु की सेवा से रोक रहे थे। तो बलि महाराज ने बोला, उनकी बात नहीं सुनी, गुरु आज्ञा कर दी। तो गुरु आज्ञा ऐसे में कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज अ बोगस गुरु। सो व्हाट हैड हैपन, सो बलि महाराज ने बोला ठीक है ले लो। एंड व्हाट वेयर एक मतलब एक कदम में ही उन्होंने ये कवर्ड अप होल यूनिवर्स एवरीथिंग। अब तीसरे कदम में कुछ रहा ही नहीं, बोला अब ये तीसरा कदम कहाँ रखूं। तो बलि महाराज was totally humble. He says, now take, please put your this 3rd feet on my head and take it, that I'm fully surrendered to you. And then Prahlad Maharaj came, he offered his garland to Bali Maharaj, तो he became the शुद्ध devotee। इसलिए बलि महाराज हमारे महाजन माने जाते हैं, because he rejected his bogus guru, ठीक है। So that was the past time, that time Vamana Dev came, okay, and then he says, although the heart he was willing to regain the kingdom of the 3 planetary system, he simply asked for donation of 3 steps of land. अब बलि वामन देव ने पूरा यूनिवर्स ही लेना था, मगर 3 स्टेप ही मांगे थे। That was the whole story, past time was there, ठीक है। So this is there, we'll move to the next incarnation। अवतारे सो दशमे पाश्चन ब्रह्मा दृढ़ो नृपान 3 कृतवन कुपितो निशत्रम अकर्णो महीम। क्या बोला है? Now the 16th incarnation of Godhead, the Lord as Bhrigupati, annihilated the administrative class Kshatriya 21 times. Who was that? ये कौन थे भृगुपति? नाम पता है किसी को? जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों की जनरेशन को निकाल दिया था, यहाँ से धरती से ही सफाया कर दिया था। Who is this? किसको पता है नाम? भृगुपति किसको कहा गया यहाँ पे? Yes, anybody knows? आस्था, you know? हरि बोल, तुम्हें याद है? Yes, he was Parshuram. Who he was? Parshuram, who is known as Bhrigupati. तो परशुराम जी ने, he was a Brahmana, but 21 बार उस समय क्या था, धरती पे जितने भी क्षत्रिय थे सब डिग्रेडेड हो चुके थे। They were not any one of them was qualified king that who can rule. So he was totally degraded हो चुका था। तो क्या हुआ उस समय, ये जितने भी 21 बार क्षत्रियों के जनरेशन को क्या किया गया, मारा गया। उस समय पूरा सफाया कर दिया गया। एंड फिर जो इनकी पत्नियां थी क्षत्रियों की, उनका विवाह ब्राह्मणों से किया गया ताकि अच्छी प्रोजनी आ सके, ठीक है, इंटेलिजेंट क्लास आ सके और आगे अच्छा सोसाइटी चल सके। सो दैट टाइम द परशुराम केम, ओके। सो परपट में बताया गया है
The Kshatriya or the administrative class of men are expected to rule the planet by the direction of intelligent class of men who gave direction to the rulers in terms of the standard Shastra or the books of the revealed knowledge. तो क्षत्रिय जो राजा होता है वो किसकी गाइडेंस में राज्य चलाता है? ब्राह्मण की. तो इसलिए उनके राज ऋषि होते हैं, ये ब्राह्मण होते हैं उनके गुरु, जो उनको आज्ञा देते हैं, उनको समझाते हैं कैसे कैसे चलना है. So that's how that's the proper system. The ruler carry on the administrative according to that direction. Whenever there is disobedience on the part of Kshatriya or administrative class against the order of learned and intelligent Brahmana, the administrators are removed by force from the post, and arrangement is made for better administration. तो क्या किया जाता है उस समय? उनको ताकि अच्छे से आगे चलाया जा सके. तो ठीक है, तो दैट टाइम परशुराम. हरे कृष्णा माता जी. यस आस्था. हरे कृष्णा माता जी. माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका बीच में. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है? आई थिंक यहाँ पे ना आज हाँ कुछ टर्म्स like too much fog outside. तुम otherwise वाईफाई से कनेक्टेड है, तुम्हें भी तो ब्रॉडबैंड जियो का है. It should work nicely. I don't know. So what you didn't heard आस्था? क्या नहीं सुना आपने? मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से फिर वो कुछ मिस हो जाता है बीच से माता जी. वर्ड्स ओके, लेट मी रिपीट अगेन. मैंने ये बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में क्या हुआ है यहाँ पे कि जब भी जो क्षत्रिय हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, एक्चुअली वो इंटेलिजेंट क्लास है, उसके अंडर डायरेक्शन में उसको कार्य करना चाहिए. तो यदि वो नहीं करता है तो उसका सफाया किया जाता है, उसको पोस्ट से निकाल दिया जाता है. ठीक है, बेटर अरेंजमेंट किए जाते हैं कि अच्छे से आगे वो सिस्टम चल सके. So that's how the Parshuram appeared, and he उस टाइम क्षत्रिय की जो जनरेशन थी that was totally degraded. So he cleared off the क्षत्रिय जनरेशन 21 times from the earth planet. और उनकी जो पत्नी थी उनको आगे ब्राह्मणों से विवाह किया गया था ताकि अच्छी प्रोजेनी आ सके. So like that way. ठीक है, क्लियर है? Did you heard आस्था? सुना आपने? Yes, thank you माता जी. Thank you. Yes. तथा सप्तादशे जातः सत्यवत्यं पराशरात् चक्रवेदाथरो शाखा दृष्टपुंसो लपामेधसा. क्या बोला है? Now the 70th incarnation of Godhead is Sri Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati through Parashara Muni. So once Parashara Muni was traveling, he saw it's a very auspicious time right now, and it's a time of Lord appearance. So what had happened? तो वहां पे सत्यवती थी, who was the daughter of डॉटर तो नहीं थी मछुआरे फिशरमैन की. some pastime is there, I don't remember exactly. तो she was there, मगर उनके शरीर, वो सुंदर बहुत ही, मगर उनके शरीर से ना मच्छी की गंध आती थी. तो पराशर मुनि आए तो उन्होंने बोला कि देखो अभी भगवान के आने का समय हो चुका है, some incarnation is there, so I need your support. तो तुम्हें मुझे हेल्प करना होगा so that the incarnation will be coming up. तो she says कि मैं तो अभी कुंवारी स्त्री हूँ, तो मेरी वर्जिनिटी लूज हो जाएगी if I'll be like helping you. He said don't worry. देखो मुनियों का, you don't have to go for a union, just by their embrace they can have the progeny. So Parashar Muni says don't worry, तुम्हारी जो chastity है, ये virginity है, वो remain रहेगी, and whatever the boon you will ask me I will fulfill your desire, but first you help me to have the incarnation of Lord to be appearing. So then ये जो पराशर मुनि थे ने सत्यवती को embrace किया था, and then व्यासदेव appeared, who is the incarnation of Lord. व्यासदेव जिन्होंने हमारे शास्त्र में दिए हैं भागवतम रिटर्न फॉर्म में. So that's how then came, and सत्यवती को तब बून मिला था कि उनके शरीर से जो ये गंध है बुरी वाली, ये चली जाएगी और अच्छी सुगंध आएगी. ठीक है, so लिखा है then Vyasadeva he divided the one Veda into several branches, sub branches, seeing that the people in general were less intelligent. तो क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं वो बहुत कम बुद्धि वाले हैं, इतनी जल्दी समझ नहीं आता उनको, तो व्यासदेव जी ने जितने भी शास्त्र हैं उनको रिटर्न फॉर्म में दिया. ठीक है, अलग अलग उपनिषद पुराणास दिए ताकि लोग इसका फायदा उठा सके कलयुग में. Originally the Veda is one, but Srila Vyasa divided the original Veda into 4, namely Sam, Yajur, Rig, Atharva, and then again they were explained in different branches like the Puranas and the Mahabharata. Vedic language and the subject matter are very difficult for ordinary man. They are understood by the highly intelligent and self-realized Brahmanas. But the present age of Kali is full of ignorant man. Even those who are born by a Brahmana father are in the present age no better than a Shudra or the women. कि कलयुग में क्या बोला, कलो संभव शूद्र. सो कलयुग में अगर कोई ब्राह्मण कुल में भी पैदा है तो वो भी शूद्री ही है, क्योंकि उस ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं है ना तो गुण है. भगवान कहते हैं गुण कर्म विभागशः, कि गुणों के आधार पे विभाजन है, मगर गुण तो है नहीं ब्राह्मण वाले. तो कलयुग में सभी क्या है, सभी शूद्र हैं. ठीक है,
No one is Brahmana. So the twice born man, namely the Brahmana, Kshatriya, Vaishya, are expected to undergo a culture purification process known as samskaras. But because of the bad influence of the present age, the so-called member of Brahmana and the higher order family are no longer highly cultured. अभी संस्कारास क्या होते हैं? गुरु के अधीन में रह के एजुकेशन लेना और ब्राह्मणिकल इनिशिएशन जैसे कहा जाता है. सो वो सब संस्कार फॉलो किए जाते हैं. प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस को कहा जाता है दीक्षा लेना गुरु की शरण में. ठीक है कि कलयुग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीबडी इज लाइक डिग्रेडेड. सो दीज द्विज बंधु क्या बोला यहाँ पे because of the bad influence of the present age of the Kali, the so-called member of Brahmana and the high order family are no longer highly cultured. देखो द्विज बंधु किनको कहा जाता है? जो ब्राह्मण कुल में तो है मगर ब्राह्मणों वाले कार्य नहीं है, तो एक्चुअल में ब्राह्मण नहीं है, तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है. फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर ऑफ ट्वाइस बोर्न. बट दीज द्विज बंधु आर क्लासिफाइड अमंग द शूद्रास. मगर इन द्विज बंधु को शूद्र में काउंट किया जाता है, ब्राह्मणों में नहीं. शूद्र और स्त्री में. श्रील व्यास दे डिवाइडेड द वेदास इनटू वेरियस ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस फॉर द सेक ऑफ लेस इंटेलिजेंट क्लासेस लाइक द द्विज बंधु, शूद्र एंड विमेन, कि ताकि सभी फायदा उठा सके शास्त्रों का, तो उसको डिवाइड किया गया. पढ़े इसको कि we'll stop here. We'll study this one tomorrow. Okay. So we are having some time, so I would like to take up some questions, comments, or any realization, or any question or कुछ भी है, so you can inquire. So it's just the incarnation we are studying. तो इनकी full detail आपको आगे वाले cantos में मिलेगा. अभी के लिए तो we are just studying the incarnation. So have some detail about them. Okay. Yes. Any questions or comments or any realizations? So please go ahead. Or if nothing, then we can stop. Yes, Akshay Prabhu. आपको समझ में आया? We are just studying the incarnation right now, so not much philosophy. So अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, or anything you want to add up. Yes. Meenal, Hare Krishna. Meenal joined quite late. Yes, Astha, Navita, any questions or comments? No, ma'am, no doubt. Okay, no problem, Akshay. Meenal, you are coming at very end moment now. I'm about to end the class. But if you have some question, I will take up. Yes, Astha. मतलब ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये तो मतलब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को नहीं बताया ना. ये तो अब मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है ना. सुखदेव गोस्वामी वो नैमिषारण्य के सेजेस को बता रहे हैं. Yes. Right? No, everything was told to Parikshit Maharaj. Yes. Whole Bhagavatam. Actually, Parikshit Maharaj wanted to hear the Leelas of Krishna. That is the 10th canto. And he was qualified also. But जो भागवतम है वो सिर्फ उनके लिए नहीं ना था, परीक्षित महाराज के लिए. This is for us people also. So that's how Sukadeva Goswami recited the Bhagavatam from the very beginning. और इसकी इम्पोर्टेंस है शुरुआत से पढ़ने का. बीच से कहीं से भी हमें भागवतम नहीं पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें हम उसको अधूरा ज्ञान होता है ना, प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे. तो until we know Krishna Tattva, about Krishna, who he is, how the God is great, how he is great, how the creation happens. So until we know all those things, we cannot relish the pastimes. So that's why ये सारी चीजें starting से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी. Understood as that? So we should also follow the footsteps and read Bhagavatam from the very beginning, not jumping from one canto to another and another. No, हमें भी शुरुआत से पढ़ना चाहिए. ठीक है? Yes. मेरा मतलब वही क्वेश्चन था माता जी कि ये जो पार्ट है या ये सिर्फ everything was told to Sukadeva Goswami. Sukhdev Goswami. Okay, माता जी, thank you. Everything was told by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. Obviously, he wanted to hear the 10th canto, but it was for the general people also, so he started from the very beginning. Okay. तो मुझे लगता था कि इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ तो सुखदेव गोस्वामी दे रहे होंगे सबको. The creation and all, it was all told by Sukadeva Goswami to Parikshit Maharaj. अच्छा. Everything was told. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Yes, anything else? Anyone else having any questions? Meenal, do you have anything to ask? Any question you have, I can take up, but right now I'm about to end the class. Do you have anything? No. Okay. Yes, Navita Mataji, आपको कोई प्रश्न है? कुछ ना समझ में आया? No, Mataji. Okay. Okay, if no questions, then I will be ending up. So see you all in the evening Bhagavad Gita class. So let's chant 3 times Hare Krishna. Those who missed the class, please look for the recording. कल का recording भी है. So परसों का भी. All the classes you can see the recordings. Okay, so let us end up now. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the symbol devotees ki jai. Hare Krishna, everyone. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna.